Welcome all of you. Today's topic, residential status and tax liability. Before computation of taxable income and tax liability of any person, either he is individual, Hindu undivided family, company, association of person, body of individual, artificial judicial person, it is very necessary to know about residential status of that person, because tax liability of person depends upon his residential status and types of income. We discuss one by one residential status and types of income. After that, tax liability. Residential status. A person can earn income in India as well as outside India, and he receives such income in India or as well as outside India. Means you can see from this, a person can earn income in India and received in India, or a person can earn income in India but receive outside India, and a person can earn outside India but received in India, and earn income outside India and also receive outside. Means any person, either individual, HUF, company, firm, he received several types of income in India or outside India, received in India or outside India. To determine which income taxable or which is not taxable, it is essential to know residential status of such person, because taxability and non-taxability depends upon residential status. Tax liability of a person totally depends upon residential status. After end of this topic, it is clear, everyone. Suppose that if a person is resident in India, he earn in India and receive in India, taxable for resident. But if a person is resident, he earn outside India and received outside India, taxable for resident individual but not taxable for not resident. So, point to be noted: first, no relation between residential status and citizenship of India. Citizenship of India provides you voting rights and some other amenities provided by Indian government, and residential status is totally defined Indian Income Tax Act 1961. A person may be or may not be citizen of India in any residential status. Residential status of a person determined by provision given Income Tax Act and rules given under that. We discuss one by one. Residential status of individual. Residential status of Hindu undivided family. Residential status of firm. Residential status of company. Residential status of every other person. We discuss one by one. First, we start with residential status of individual. An individual may be a resident and ordinary resident in India, or resident but not ordinary resident in India. Third, non-resident in India. Means individual, either resident or not ordinary resident or non-resident.
For the purpose of easiness, we provide symbol R, NOR and NR. One more category, that is deemed resident, we will discuss further. Means for the purpose of residential status of individual, a individual may be R, NOR and NR in short form. Okay. Now, residential status of HUF. A HUF may be resident and ordinary resident in India, resident but not ordinary resident in India, non-resident in India. In short form, we can say a HUF may be R, NOR and NR, like individual. Residential status of firm. A firm may be resident or non-resident. Here you must know the point that firm may not be NOR. After that, residential status of company. A company may be resident or non-resident. Like firm, a company cannot be NOR. Residential status of every other person, resident and non-resident. So this is the bifurcation for individual and HUF, and here for individual and HUF they are in three bifurcation, and firm, company and person, they are resident and non-resident only, but individual and Hindu undivided family may be resident, not ordinary resident, non-resident. Means individual and HUF may be R, NOR, NR, and firm, company and every other person is R and NR. That's it. Residential status of individual. We discuss one by one. First, we select residential status of individual, different types of income of individual, and tax liability of individual. First, we start residential status of individual. An individual may be resident, not ordinary resident, non-resident. For the purpose of determine residential status of individual, two conditions given Indian Income Tax Act. Basic condition under section 6 subsection 1 and additional condition section 6 subsection 6A. Residential status, basic condition and additional condition. First, start with the concept of basic condition and additional condition. First, basic condition. There are two basic condition and two additional condition. Basic condition first, he is in India in the previous year for a period 182 days or more. Means कि वह इंडिविजुअल भारत में 182 दिन या उससे अधिक प्रीवियस ईयर में रहा. सेकंड, he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 year immediate preceding the previous year. अब सेकंड कंडीशन जो बेसिक है उसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि 60 days or more in the previous year and 365 days or more during the 4 year immediate preceding the previous year. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप सब लोगों का असेसमेंट ईयर क्या है, 22-23. तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 21-22. तो प्रीसीडिंग 4 ईयर इमीडिएटली, तो प्रीवियस ईयर का प्रीसीडिंग 4 ईयर 2021
1920, 1819 and 1718 means preceding immediately the previous year. Total 365 days or more. And in the previous year 60 days or more. But exception applicable. एक्सेप्शंस हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन याद करनी है. इन द प्रीवियस ईयर मीन्स 21, 22, 182 days or more, and second basic condition is previous year 60 or more than 60, but preceding immediately the previous year total 365 days or more. एक्सेप्शन अभी हम क्लियर करेंगे. एक्सेप्शन के केस में प्रीवियस ईयर में 60 डेज की जगह आपको आइदर 120 डेज और 182 डेज कंसीडर करना है. वो अभी एक्सेप्शन हम लोग क्लियर करेंगे. अब बेसिक कंडीशन के बाद एडिशनल कंडीशन. फर्स्ट, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया at least 2 out of 10 previous year immediately the preceding the relevant previous year. यहां भी आपको 10 previous year immediately preceding the relevant previous year, at least 2 resident in India. तो अब resident in India की मीनिंग है कि if any individual fulfill one of the basic condition, he is deemed to be resident. Means out of 10 preceding previous year, 2 year, one of the basic condition fulfill होनी चाहिए. And second one is he has been in India for a period of 730 days or more during 7 year immediate preceding the relevant previous year. Means previous year के पहले 7 year में total 730 days होना चाहिए. और आपको क्लियर है कि आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है, आपका प्रीवियस ईयर 21-22. तो आप काउंटिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 4 या 7 या 10 अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर कंसीडर करेंगे. और आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन कंफर्म होना जरूरी. एक्सेप्शन. In the case of exception, 182 days in place of 60 days. First, crew member of an Indian ship. इंडियन शिप जो होती है उस पे जो क्रूज मेंबर मींस शिप के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये एक्सेप्शन रखा गया है कि 60 डेज के अगेंस्ट उनका 182 डेज ही कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू इंडिया ऑन ए विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो बाहर रहते हैं अगर वो भारत आते हैं विजिट के लिए तो उनका भी 60 डेज के अगेंस्ट 182 डेज काउंट होगा. And Indian citizen who lives India during the previous year for the purpose of employment outside India. अगर कोई इंडियन सिटीजन पर्सन है और वो इंडिया छोड़ता है लेकिन उसका पर्पस ऑफ लीव इंडिया एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी खोजने विदेश गया या घूमने गया वहां नौकरी लग गई, मतलब बनारस से जब वो निकल रहा हो, इंडिया से जब वो मूव कर रहा हो तो उसका एम्प्लॉयमेंट पर्पस होना चाहिए. इफ पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीडिंग 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 120 डेज इन प्लेस ऑफ 60 डेज. तो एक्सेप्शन में 60 डेज के अगेंस्ट 182 डेज भी है और 60 डेज के अगेंस्ट 120 डेज भी है. आपको एक्सेप्शंस के क्राइटेरिया ध्यान में रखने होंगे. नोट. इंडियन ओरिजिन
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? इफ ही और आइदर हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। और ग्रैंड पेरेंट्स में मैटरनल पैटर्नल दोनों आपको ध्यान रखना है। इट इज नॉट नेसेसरी स्टे शुड बी एट वन प्लेस एंड वन विजिट। ये नेसेसरी नहीं कि इंडिया में आप 60 डेज या 182 डेज या 730 डेज या 182 डेज या 365 डेज आप एक ही प्लेस पे रहें। आपको पूरे इंडिया में रहना है और इंडिया का मैप आप देख रहे होंगे। और इंडिया से मीनिंग यहां टेरिटरी वाटर बाउंड्रीज से है, जो 12 नॉटिकल माइल्स है आई थिंक, उसके अंदर आपको रहना है। कहीं भी आप रह सकते हैं, वन प्लेस मस्ट नहीं है, और आप ब्रेक कर करके भी रह सकते हैं। मीन्स फॉरेन से इंडिया आए, आप 10 डेज रहे, फिर फॉरेन चले गए, फिर 30 डेज आके रहे, फिर वापस चले गए, फिर 90 डेज। तो काउंटिंग आपको कितने दिन आप इंडिया में रहे और कितने दिन इंडिया से बाहर रहे उस पैरामीटर्स पे करनी है। इट इज नॉट नेसेसरी स्टे 60 डेज or 182 days should be continuous in India. Counting of days on the basis of entry and departure time given or not. आप डेज काउंटिंग के लिए जब भी आप इंडिया से कोई फ्लाइट बाहर कंट्री के लिए डिपार्ट करती या फिर एंट्री होती, इंडिया में लैंड करती, तो एंट्री और डिपार्चर टाइम आपको गिवन होता आपके एयरलाइंस के टिकट पे। अगर टाइम गिवन है तो आप आवरली बेसिस पे काउंटिंग करेंगे, और टाइम नहीं गिवन है तो आप डे बेसिस पे काउंट करेंगे। और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं, मींस जनरल रूल है कि जिस दिन इंडिया से डिपार्ट किए वो दिन इंडिया में काउंट होगा, और जिस दिन इंडिया में एंट्री होती है जनरली वो दिन इंडिया में मान लिया जाता है। ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप CACS ICW के हैं तो फिर वहां की पढ़ाई थोड़ा और डीप में है, और उसके लिए आपको आवरली बेसिस पे कैलकुलेशन करना होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंट, आपने बेसिक कंडीशन भी पढ़ लिया, एडिशनल भी पढ़ लिया, एक्सेप्शन भी देख लिया, काउंटिंग कैसे होगी ये भी देख लिया। अब आप देखिए कि रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होंगे। एन इंडिविजुअल हु सेटिस्फाइड एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन। मीन्स कोई भी इंडिविजुअल अगर बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। नॉन रेजिडेंट, an individual who does not satisfy at least one of the basic condition. जो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नॉन रेजिडेंट होगा। एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल हु सेटिस्फाइड एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन बट डज नॉट सेटिस्फाइड वन और बोथ द एडिशनल कंडीशन। मीन्स एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या एक ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप इंडिविजुअल होंगे। मींस इन शॉर्ट आपको ये देखना है कि वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन, तो इनकी कैटेगरी आर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो एनआर, और बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है एडिशनल नहीं हो रही है तो एनआर। ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। मिस्टर वाई is an Indian citizen. He stay in India since his birth. वो अपने जन्म से ही भारत में थे। He went outside India for visit first time
in 1st November 2021 and came back 1st April 2022. Determine his residential status assessment year 22-23. अब असेसमेंट ईयर आपको मालूम है 22-23, तो प्रीवियस ईयर 21-22। अब आप डेज काउंट करिए, देखिए प्रीवियस ईयर आपका क्या है 20, 21, 22। ये इंडिया से बाहर किस लिए गए हैं, विजिट के लिए गए हैं, मींस इनका नहीं तो एम्प्लॉयमेंट ही पर्पस है और ये इंडियन सिटीजन है। तो अब 1 नवंबर को ये आउट हो गए और 1 अप्रैल 20 को आए, मींस 21-22 में देखिए मंथ स्टार्ट होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 1 नवंबर को इंडिया से बाहर चले गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मींस अप्रैल में थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अब टोटल इंडिया में ये कितने डेज रहे, आप इसको काउंट कर लीजिए और टू 14 डेज, मीन्स प्रीवियस ईयर में 214 डेज थे और उसके पहले ये हमेशा कहां थे, पहली बार 1 नवंबर को गए, मीन्स इसके पहले जो आपका प्रीसीडिंग 4 ईयर होगा 1920, 18-19 एंड 17-18, ये 4 ईयर मीन्स पूरा इंडिया में ही थे। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो 182 डेज वाली सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स दोनों ही कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं बेसिक, और उसके पहले भी ये इंडिया में ही थे तो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आपको ये चेक कर लेना है कि स्टे इन इंडिया बेसिक कंडीशन 1-2, एडिशनल कंडीशन 1-2। तो प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशन में आपको क्या चेक करना है कि इन प्रीवियस ईयर मिनिमम 182 डेज, तो ये फुलफिल हो रही है, 214 डेज है। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड प्रीसीडिंग 4 ईयर ऑफ इमीडिएट प्रीवियस ईयर, टोटल 365 डेज, तो ये भी पूरी हो रही है। एडिशनल कंडीशन क्या है कि 2 ईयर एज रेजिडेंट आउट ऑफ 10 ईयर, तो 2 ईयर रेजिडेंट की मीनिंग होती है कि 2 ईयर वन ऑफ द बेसिक कंडीशन पूरी हो, तो वो फर्स्ट टाइम 1 नवंबर 21 को इंडिया से बाहर गए, उसके पहले इंडिया में ही थे, तो ये पूरी हो रही है। और 7 ईयर्स में 730 डेज, ये भी पूरी हो रही है, मींस कि ये दोनों बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, मींस ये प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर के लिए ये इंडिविजुअल मिस्टर वाई रेजिडेंट ट्रीट किए जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। और बीकॉम लेवल पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1 नवंबर को इंडिया से लीव किए तो 1 नवंबर को भी इंडिया में काउंट होगा, और तब आप ये काउंटिंग आपकी 214 डेज की जगह 215 डेज आपको कर लेना है। और 1 अप्रैल 22 को आए तो वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका चला गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बीकॉम लेवल पे जिस दिन इंडिया से डिपार्ट हो और जिस दिन इंडिया में एंट्री करें, वो दोनों दिन इंडिया में ही काउंट करके आप सॉल्व करिएगा, और नीचे नोट में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और इसी तरह एक और
प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये देखिए, मिस्टर वाई इंडियन सिटीजन, ही स्टे इंडिया सिंस बर्थ, ही वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर विजिट फर्स्ट टाइम 1 जून को चले गए एंड केम बैक 1 अप्रैल 22, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। इसको आप लोग करके देखिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस होगा फिर बाद में। सबसे पहले असेसमेंट ईयर आपको डिसाइड करना है, प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया, फिर बेसिक कंडीशन फर्स्ट सेकंड में कौन सी पूरी हो रही है, एडिशनल कंडीशन फर्स्ट सेकंड। और अगर कोई पर्सन वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट होगा। वन ऑफ द बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है, एडिशनल नहीं कर पाता, दोनों या कोई एक, तो वो एनओआर होगा। और अगर बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता तो वो एनआर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन ये है, इसको भी आप चेक करिएगा और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपको बेसिक और एडिशनल कंडीशन और उसके एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है। और ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, फिर कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल मींस एनी अदर पर्सन का स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। द सेशन इज ओपन फॉर क्वेरीज। ओके, तो आप क्वेश्चन करने के बाद क्वेरीज करिएगा। थैंक यू वन एंड ऑल।